Okay, so guys, the first step is to register yourself. So as you can see, this is the page we have landed at, and this is the registration part. Okay, so here you will see the option of haven't registered yet, register here. So you need to enter your name as per school record, means you need to enter your 10th standard mark sheet name. Okay, spelling और ये सब सबका ध्यान रखना है. A valid email ID, a mobile number, डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर से चूज कर लो. ठीक है. एंड अ पासवर्ड. ना पासवर्ड शुड हैव बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर्स, मोर देन 8 कैरेक्टर्स. ये चीजों का ध्यान रखना है. कंफर्म पासवर्ड. गाइस मेक श्योर कि आप लोग जो है एक एक्सेल शीट बनाकर वहां पे क्या ईमेल आईडी आप लोग डाल रहे हो, क्या मोबाइल नंबर डाल रहे हो और क्या पासवर्ड डाल रहे हो फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन वो मेंटेन करना. ओके. सो वंस यू डू दिस, ठीक है, आपको जो है एक एसएमएस आके एक आपको ओटीपी आपका कंफर्म हो जाएगा एंड देन यू आर रजिस्टर्ड. ओके. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन. So now this is the thing and you will have to log in from here. Okay. So we are going to log in now. So whatever email ID and everything you have used, so just, use that to log in. Okay. Okay, so this is basically an application already in process. I will show you how to apply for a new application. Okay, तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा. उसमें यू विल हैव टू फर्स्ट चूज कि एप्लीकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री. ठीक है. एंड देन यू विल हैव टू सर्च योर प्रोग्राम. ओके. सो देर आर लाइक मेनी प्रोग्राम्स एंड यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे हैं. देर इज इवन फिल्टर्स यहाँ पे है. आप फिल्टर भी कर सकते हो प्रोग्राम्स. ठीक है. यूजिंग सम कीवर्ड्स या ऐसा कुछ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा करना है तो नाउ आई विल गेट ऑल द कोर्सेज जहाँ पे बिजनेस वर्ड आ रहा है. ठीक है. सो दिस वे यू कैन फिल्टर. सो आई हैव बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, बीबीए इन दिस. सो आई कैन चूज बीबीए. मैं बीबीए लगाऊंगी तो सारे बीबीए वाले ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई टू जनरल बीबीए वाला जो कोर्स है मैं उसके लिए अप्लाई कर रही हूँ. सिमिलरली यू कैन राइट डाउन बीकॉम. बीकॉम आप सर्च करेंगे तो सारे बीकॉम के ऑप्शंस आ जाएंगे. लाइकवाइज इफ यू सर्च फॉर बीए तो सारे बीए के ऑप्शंस आ जाएंगे. अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है तो सर्च इकोनॉमिक्स, तो यू फाइंड ऑल दोस ऑप्शन. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो. फिल्टर नहीं भी करना तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो. ओके. तो आप यू कैन टाइप द एंटायर नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट यू हैव एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट. Okay, so right now I am applying to BBA honors with research. सब में अगर आप देखोगे तो it is like the course का नाम /honors with research. तो मतलब the courses are actually of 3 years, but if you opt for a 4 years course, you will get a honors degree. And honors with research होता है if you do a research project in your final year. ठीक है. तो right now I am selecting this course BBA honors. Okay, so I am just going to click on this. So now you will see that here this is. So please read the instructions while you go. Okay. So now program preference first. So my first preference is definitely the one and my preferred campus. So I'm going to first select the central campus. Other preferences. Okay. So if I want to apply to any other courses, so I can apply to BBA honors and my second preference is Yashwantpur campus. And then I can apply to BBA honors again. And I can select the Kangri campus. Okay, so here ये मैंने किया है. Now profile photo. So I need to apply, just मुझे एक फोटो अपलोड करने की जरूरत है. So I will need a photograph for that. Yes, I'm going to use my photograph itself. Okay. Okay. So now you have to just click on upload one file. And then submit. Okay. So you just need to upload a file and click on submit. Okay. You can even view the profile photo by clicking here. Okay. Now, what you need to see is this. The photo should be candidate's recent passport size photo, must be in either color or black and white.
The photo should be with clear face, without a mask, including the ears, against a plain light background. The photo should be submitted in JPG, EG, PNG format with a file size not exceeding 200 KB. Okay. So once you are done with all these things, just click on save and proceed. Now they will make you sound something. So these are certain rules and regulations of Christ University. Okay. I will suggest that you please read it once. Okay. Please read it once, all of you, because this has like things like attendance policy and behavioral and all these things that are required to be a part of this university. Please make sure that you read all of these. Don't just simply click because it's important. Okay. Now I have a valid credit card, debit card, net banking, UPI. I will upload original scanned copy of class 10th and 11th or class 10 board results under the documents upload section. But और है class 12, so we are not, it's not compulsory, but 10th और 11th आपको upload करना पड़ेगा. I have read the above guidelines, ये वाले मैं इसकी बात कर रही हूँ. Students joining this program will be required to study an additional 4th year if the regulatory authorities mandate 4 years of duration of an honors degree. मतलब क्या है कि अभी तो जैसे 3+1 का ऑप्शन है, यू गाइस कैन टेक एन एग्जिट आफ्टर 3 years, बट इन्होंने क्या बोला है कि अगर कंपलसरी कर दिया कि 4 years ही अंडर ग्रेजुएशन है, आपके सेकेंड ईयर जब आप लोग हो तब गवर्नमेंट का कोई रूल आ गया, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 4th ईयर पढ़ना पड़ेगा, तब आप उस टाइम पे झगड़ा नहीं कर सकते हो यूनिवर्सिटी के साथ. दैट इज व्हाट दे वांट टू इंडिकेट. सो जस्ट क्लिक ऑन ऑल दीज थिंग्स, और आपको करना ही पड़ेगा ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रोसीड. ठीक है. Okay, so now it is saved. So first thing they ask is your citizenship. The why this is important, because they have different fee structure for different citizenship and ऐसा. So Indian citizenship आपके पास है तो ये applying through overseas sponsor और NRI quota, no. Okay, तो यहाँ पे जो है आपको बेसिक चीजें जो आपको डाल देनी है. Okay, ये चीजें हमने पहले भरी थी एक बार, तो इसलिए चीजें हैं यहाँ पे. डू यू हैव एन आधार कार्ड? सी यहाँ पे जो चीजें ऑप्शनल लिखी हुई है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू पुट दैट इन्फॉर्मेशन. इफ यू वांट यू कैन पुट इट. कंट्री ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी. हाउ डिड यू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन? तो इसमें यू कैन डू वट एवर, so alumni or anything, whatever you want to, so that does not make much of a difference. So sports academic achievement details ऐसा. तो now if you have something in for example football और हॉकी, ओके, तो यहाँ पे आपने कौन से लेवल पे आपने खेला है. ठीक है. एंड दे हैव ओनली 3 levels. तो जो आपने स्टेट लेवल, रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट, रिप्रेजेंटेड स्टेट और रिप्रेजेंटेड कंट्री, तो अगर आपके ये कोई लेवल पे है तभी आप उसको डाल सकते हो. स्कूल लेवल ये सब वाले डालने के ऑप्शंस नहीं है. इट इज ओनली 3 levels. कि अगर आपने स्टेट लेवल खेला है देन यू नीड टू अपलोड अ डॉक्यूमेंट. दैट इज ऑप्शनल, अभी जरूरी नहीं है. यू कैन डू दैट. अगर आपको और कुछ स्पोर्ट्स का ऐड करना है तो देन सिमिलरली यू कैन ऐड. फॉर एग्जांपल बैडमिंटन में आपका कुछ नेशनल लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया है, एंड यू कैन अपलोड अ डॉक्यूमेंट. यहाँ पे अपलोड करने के लिए यू विल हैव, जैसे एक आपको मतलब पीडीएफ फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा विच यू कैन सबमिट. ठीक है. नाउ ऑल्सो, तो इस तरह से यू कैन कीप ऑन एडिंग, बट प्लीज मेक श्योर कि वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल हो. Now for extracurriculars also, whatever it is. So if you have done something in, coding workshops, or if you have done something in computer programming or dance or writing, okay. डिबेट में अगर आप रहे हो, ड्रामा में रहे हो, एमसीइंग किया है, so there is lot many options जो यहाँ पे है. लीडरशिप अगर आपने कुछ किया है, सो लॉट मेनी ऑप्शंस जो आप इसमें से चूज कर सकते हो. ठीक है. तो सर जस्ट सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल आई सिलेक्ट क्विज. तो देन वट एवर इज द डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो अपलोड करना है. यू आर नॉट आस्क्ड लेवल ये सब यहाँ पे. तो आपके जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें आप ये सिलेक्ट करके, कैटेगरी सिलेक्ट करके, मे बी जैसे फोटोग्राफी है तो जस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट. एंड हियर ऑल्सो यू कैन जस्ट कीप ऑन क्लिकिंग ऑन एड, एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन लाइक मे बी एड बिजनेस प्रोग्राम, आपने कोई कोर्स किया है, ये सब किया, तो यू कैन डू दैट. Okay. See, now what if you don't want to fill the entire form in one go, you have an option of saving this. You can save it as draft. Okay. And then फिर आप वापस से लॉगिन करके नेक्स्ट टाइम आप फिल कर सकते हो. इफ यू वांट टू प्रोसीड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. प्लीज एंश्योर दैट सेव पे क्लिक करते जाना, इधर सेव एज ड्राफ्ट या कुछ भी. अदरवाइज जो भी आप डाल रहे हो वो सब जो है आपका वेस्ट चला जाएगा.
ठीक है। नाउ एड्रेस अगर हमें डालना है तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट माई एड्रेस हियर। ओके। अभी यहाँ पे माई कंट्री इज इंडिया। आई हैव टू राइट द जिप कोड। जिप कोड क्या होता है? ये जो आपका 7 डिजिट वाला है, डोंट राइट 0261, वो आपका टेलीफोनिक कोड है। जिप कोड आपका एरिया कोड होता है, पिन कोड। ठीक है। एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट आपको ऑलरेडी वो ले लेगा, आपके जिप कोड से ही उसको समझ में आ जाएगा। यू कैन राइट यहाँ पे भी। एंड ये ठीक है, अदरवाइज ये सूरत ये ऑलरेडी ये लोग ले ही रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। ओके। सो इज द परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस? मतलब परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका एक परमानेंट रेसिडेंस प्रूफ होता है। अगर कोई दूसरा है तो अदरवाइज इफ यू जस्ट क्लिक ऑन यस, तो वो आपका ऑलरेडी वो ले लेगा। इफ नो, तो यहाँ पे यू विल हैव टू एंटर दिस अगेन। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस विल बी यस। ओके। यहाँ पे नाउ यू विल हैव टू एंटर दीज डिटेल्स रिगार्डिंग योर पेरेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है फादर के आपको डिटेल्स डालने रहेंगे। ठीक है। तो अभी उसके उनके क्वालिफिकेशन, सो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे, नाउ वट एवर योर डैड डज, आपको वहां पे वो लिखना पड़ेगा। ठीक है। सो जैसे अगर इफ ही हैज अ बिजनेस तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट बिजनेस। यू कैन एंटर हिज ईमेल आईडी। You can enter his phone number. Phone number is not compulsory. Email ID is not compulsory. The star mark दिया हुआ है छोटा सा, वही compulsory है। तो if you don't want to put, that's okay. ठीक है। सिमिलरली मदर का भी आपको नाम डालना पड़ेगा। मदर की क्वालिफिकेशन वो भी आपको डालनी रहेगी। मदर की ऑक्यूपेशन जो है वो आपको डालना रहेगा। ठीक है ना। सो वट एवर योर मॉम डज, तो वो आपको जैसे डालना रहेगा। सो देन मदर की ईमेल आईडी एंड फोन नंबर अगेन ऑप्शनल है ना। फैमिली एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मतलब पूरे साल का आपको डालना है। तो यहाँ पे यू कैन पुट एक जो भी आपको एक रेंज लगता है, यू कैन पुट दैट। ठीक है। तो एक आप नंबर आप डाल सकते हो, एक रेंज डाल सकते हो ऐसा। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको एक उस तरह से पुट करो। ठीक है। फैमिली इनकम करेंसी, तो इसमें इंडियन रुपी आप सिलेक्ट कर सकते हो ये। नाउ गार्जियन इंफॉर्मेशन। ठीक है। गार्जियन इंफॉर्मेशन आपको तब डालना है। So it's not compulsory. If you want to put it, you can put it. ठीक है। Now again save as draft and save and proceed आएगा। Now see guys, this is very important। आपका जो academic section है that's really important। क्लास 10th की अब बात हो रही है, तो सबसे पहले you will have to select your boards। ठीक है। तो आपका जो भी बोर्ड है, सीबीएसई, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सीबीएसई, आईबी, आईसीएसई, आईजीसीएसई, एनआईओएस, अदर इंटरनेशनल करिकुलम, अदर स्टेट बोर्ड्स, एसएसएलसी। सो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, और बाकी जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है वो भी वही सिलेक्ट करेंगे। एंड बाकी सब यहाँ पे, तो आई एम सिलेक्टिंग सीबीएसई राइट नाउ। ईयर ऑफ पासिंग आपका 10th का ईयर ऑफ पासिंग, तो फॉर मोस्ट ऑफ यू इट विल बी 2022। बाकी जो भी आपका है प्लीज कंफर्म दैट। मंथ ऑफ पासिंग आपकी जो 10th की मार्कशीट है वहां पे नीचे डेट दी हुई रहेगी। ठीक है। या फिर आपके जो भी मंथ में आपका रिजल्ट आया था वो आपका मंथ ऑफ पासिंग होता है, बट वो वहां पे डेट दी हुई होती है आपकी मार्कशीट में, तो प्लीज राइट दैट मंथ ओनली। ठीक है। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडिया ही रहेगा आप लोगों का मोस्टली सबका, मतलब आपने कहाँ से कौन सी कंट्री से किया है। स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑब्टेन मार्क्स आपको है ना, परसेंटेज नहीं डालने हैं। आपको जो है आपके जो भी मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए थे, एंड द परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाय देम ऑटोमेटिकली। ठीक है। यू विल हैव टू अपलोड एंड व्यू, मतलब क्या, इट इज कंपल्सरी, तो ऑब्वियसली यू हैव टू अपलोड योर क्लास 10th की मार्कशीट। ओके। सो वी विल जस्ट अपलोड ए पीडीएफ, हम वहां पे हम डालेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन अपलोड वन फाइल। ठीक है। प्रीव्यू इज नॉट अवेलेबल बट दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है। ओके। एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। तो यहाँ पे वन आ रहा है, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ मतलब वन फाइल हैज बीन अपलोडेड। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सो इंस्टीट्यूशन मतलब आपकी स्कूल। सो वॉट एवर योर स्कूल इज, फॉर एग्जाम्पल, तो यू कैन एंटर द नेम। ठीक है।
एंड इफ यू फील कि यहाँ पे वो नाम आ रहा है, तो आप वहां पे वो नाम उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो. इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड, एंड आई एम श्योर ये वाला लोड होने में टाइम भी लगाएगा, बिकॉज दे मस्ट हैव पुट सो मेनी. ये सो बेटर टू जस्ट, दे हैव आल्सो गिवन दिस इंस्ट्रक्शन की 3 अल्फाबेट आप वो करके देख लो. अभी वो लोड हो रहा है, इसलिए मैं उसको वो भी बैक भी नहीं जा पा रही. सो जस्ट वी विल पुट, तो आपको है ना थोड़ा सा पेशेंस रखना, मेरे जैसे इम्पेशेंट मत होना. 3 कैरेक्टर डालो. ओके, एंड देन जस्ट वेट, एंड द लिस्ट विल बी लोडेड. वहां से आपकी स्कूल का नाम आपको मिले, प्रॉपरली सर्च करना, तो आपको मिल जाएगा. इफ यू डोंट फाइंड इट, जस्ट टाइप इट दे. ठीक है. ओके. नाउ सिमिलरली अभी 10 11, अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है, फॉर स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स, और जिनके लास्ट ईयर की 10th 12th की मार्कशीट अवेलेबल है, सो यू गाइज नीड नॉट एंटर द 11th की मार्कशीट, डायरेक्टली एंटर 12th. फॉर अदर्स यू हैव टू एंटर 11th की मार्कशीट. आईबी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड के प्रिडिक्टेड ग्रेड्स, टर्म 1 की मार्कशीट, ये सब कुछ नहीं चलने वाली है. इट इज द फाइनल मार्कशीट दैट इज नीडेड. सो एंटर द 11th का ही जो आपका फाइनल मार्कशीट है, जस्ट एंटर दैट. ओके. प्लीज ईयर ऑफ पासिंग डालते हुए ध्यान रखना. आपने 10 2022 में किया है, तो 11 23 में रहा होगा. ठीक है ना, एंड मंथ ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ रहेगा. ठीक है. अगेन यू हैव टू जस्ट अपलोड अ डॉक्यूमेंट यहाँ पे. ओके. अगेन जैसे नेम में ये वाला है. तो गाइज यू कैन सी, यहाँ पे प्रॉपर एक पूरा आएगा. ठीक है. यहाँ पे जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो डाले हैं, वो आप देख सकते हो. फिलहाल क्योंकि मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था, तो इसलिए नहीं है. अदरवाइज प्लीज चेक योर एंटायर दिस थिंग. वट एवर यू हैव अपलोडेड, वो पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखेगा. ठीक है. इफ यू वांट टू एडिट एनीथिंग, यू कैन डू दैट. नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. तो आपको एड्रेस के साथ ही डालना है, तो प्लीज टाइप द एंटायर थिंग. अभी मेरे में वो नीचे लिस्ट नहीं दिख रही है. इन आइडियल केस, अगर हमारा जैसे इंटरनेट स्पीड है सब ठीक है, तो वो नीचे की लिस्ट दिखेगी. इफ नॉट, एटलीस्ट टाइप लाइक हाउ आई डिड. तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, सूरत, और उसके आगे उसका छोटे में एड्रेस पूरा एक ही बार में टाइप कर देना. ठीक है. So once this is done, all of these are done, so please check the data. That's very important. Check the data once. ठीक है. कुछ भी, क्योंकि आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे. तो जब आपको ये प्रीव्यू आ रहा है,
तो आपको उस टाइम पे इंश्योर करना है कि एवरीथिंग इज करेक्ट. ओके. नाउ दैट यू हैव checked everything, uploaded all the documents, फोटोग्राफ आपने अपलोड कर दिए, मार्कशीट ये सब आपने जो भी अपलोड करी है वो कर दी है. तो नाउ दैट यू आर डन, just click on I confirm. Because, see, are you sure you want to proceed? Please know that after confirming this, you may not be able to make any changes. Click confirm to proceed or click cancel to preview again. So if you want to check again, click cancel. Just check. कुछ भी आपको समझ लो एडिट करना है. फॉर एग्जाम्पल नाउ यू वांट टू एडिट समथिंग यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे स्कूल का ये नाम के साथ मुझे वो डालना है. अगर वो नहीं टाइप हो रहा है ना तो वापस से उसको वो क्रॉस कर देना. एक बार में टाइप करना है, क्योंकि अगर आपने बीच में टाइप करना रोक दिया या एंटर कर दिया तो फिर क्रॉस करके ही करना पड़ेगा. ठीक है ना. ठीक है. तो ये मैंने पूरा जैसे एयरपोर्ट के साथ ये पूरा कर दिया. ओके. so now you can just click on save and proceed. so now again you can see एड्रेस आ रहा है आपका, सब कुछ आ रहा है, एंड यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस ये पूरा प्रॉपर आ रहा है. ओके. एंड आपको ये कौन सा एड्रेस और ये सब डालना है जो आपकी ऑफिशियल मार्कशीट ये सब में जो है. तो ऑफिशियल एड्रेस है वो, आपको जो एड्रेस पता है ऐसा कुछ भी रैंडम मत डालना. नियर दिस जो एड्रेस एक्चुअली में आपके स्कूल वाले यूज करते हैं, जस्ट पुट दैट. सो नाउ वी आर वंस वी आर डन, तो आई एम कंफर्मिंग दिस एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन कंफर्म. नाउ, do you wish to attend the selection process outside India? No, guys, please do it in India. ठीक है. प्लीज चूज योर प्रेफरेंस फॉर एंट्रेंस टेस्ट. नाउ अभी जो है हम लोगों को समझना है कि एंट्रेंस टेस्ट हमें कब देना है. सो देर आर टू ऑप्शन. राउंड वन इज ऑन 7th of April एंड 11th में. हम लोगों का प्रेफरेंस रहेगा फर्स्ट राउंड ही. फॉर दोज हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड विद अस, तो आप लोगों को प्रेफरेंस हमारा वही रहेगा. ठीक है. Until and unless you have a board exams then, and I don't think so anyone is having a board exam on 7th of April. ठीक है. So let's keep it that. And यहाँ पे जो है आपको स्टेट आपका सिलेक्ट कर लेना है. So you will get an option of select the city. तो सूरत सेंटर हमें सिलेक्ट करना है. अब आपको दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप अपना माइक्रो प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए डेट सिलेक्ट करो. उसके लिए सेंटर सिलेक्ट करो. डेट तो आपका 14th अप्रैल ही रहेगा, वो फिक्स है. नाउ अभी ये जो है यू कैन सिलेक्ट पुणे. ठीक है. तो वो बाकी इनके कैंपसेस ही है उसमें ही रहेगा. ठीक है. तो आप सेंट्रल कैंपस में जा सकते हो, एनसीआर जा सकते हो. अगर आपको दिल्ली ज्यादा ट्रैवल करना प्रेफरेबल है कि आप ट्रेन से, आपको ओवरनाइट जर्नी है सूरत से, या फिर जिनका भी, जैसे फॉर स्टूडेंट्स इन बैंगलोरू यू डेफिनेटली सिलेक्ट बैंगलोरू. सूरत से चेन्नई प्लीज सिलेक्ट बैंगलोरू. ठीक है ना. तो नियर बाई सिटी जो है यू कैन गो टू पुणे ऑल्सो, यू कैन ट्रैवल टू कोलकाता ऑल्सो. सो द स्टूडेंट्स डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस आप चूज कर सकते हो. प्लीज मेक श्योर यू कैन नॉट चेंज दिस लेटर ऑन. तो टॉक टू योर पेरेंट्स, सब डिसाइड करो कि कहाँ आपको जाना है फिर करना है. आई एम सिलेक्टिंग पुणे एट द मोमेंट. पुणे जो क्राइस्ट का कैंपस है लवासा में, वहीं पे होगा आपका इंटरव्यू. so you can choose that. So right now I am choosing Pune. So you can choose this, and date जो है आपको choose करना है. There are 3 dates of interviews and everything, so you can choose. Okay, so I am choosing on 14th itself. Okay, so the date opted is binding on me. So देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं कोई दूसरा डेट में नहीं, ये लोग मुझे ऑफर करेंगे. सो ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे है, यू विल हैव टू दिस. ठीक है. द नेक्स्ट लास्ट में यू विल हैव टू प्रोसीड टू पेमेंट वाला. ठीक है. सो द पेमेंट फीस इज, एप्लीकेशन फीस इज 1700. दिस इज फॉर वन कोर्स. ठीक है. दिस इज फॉर वन कोर्स. सो यू कैन मेक द पेमेंट. ओके. एंड आफ्टर यू हैव मेड द पेमेंट, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा. Okay, after the payment is made, they will show a transaction ID. Guys, it's very important that you note down that transaction ID, take a screenshot, do whatever you want to do, but you have to keep a note of that transaction ID just in case कि आपने पेमेंट कर दिया है, आपके पैसे भी कट गए हैं, ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हो गया है, फिर भी आपका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है या ऐसा कुछ है, तो वी कैन ड्रॉप देम ए मेल. ठीक है. आई एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, इस पे क्लिक करो एंड जस्ट क्लिक ऑन पे नाउ. Okay, so payment service is facing some issues at this moment. So, okay, so right now I cannot make a payment. ठीक है, आ गया. अभी now there are options of credit, debit card है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, क्यूआर है. क्यूआर आपको करना है. ठीक है. तो अभी जो है क्यूआर कोड, जैसे अगर मुझे करना है
तो ये QR कोड, आई कैन जस्ट स्कैन दिस QR कोड एंड दिस विल बी डन। ठीक है। सो जैसे जो है यू कैन मेक द पेमेंट। तो अभी आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को पूरा सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है। ओके।